Hello dear kids, a very warm welcome to your English class. I am sure you all are good, you all are healthy and you all are safe and happy. Online classes enjoy कर रहे हो आप लोग? I hope you all are enjoying and definitely enjoying this new way of teaching and learning. This is a new way for you as well as for me. आपके लिए भी एकदम ये एक नई चीज है और हमारे लिए भी एक नई चीज है. So we all are learning something new. You are also learning. We are also learning. And this is the best solution as of now. अभी तो हम सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं because schools are closed. You are not coming to school. Schools are not closed, but स्कूल में बाकी काम हो रहे हैं. But teaching का जो पार्ट है that is not taking place in your regular classrooms. जो आप रेगुलर क्लासरूम में आते हो, फ्रेंड्स के साथ बैठते हो, हल्ला करते हो, एंजॉय करते हो, वो चीज अभी नहीं है. अभी आप घर से ही बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो. So I am sure you all are enjoying this a different kind of teaching जहाँ घर में आप आराम से बैठ करके पढ़ाई कर सकते हो. So I am sure you all are loving it. ठीक है ना? So coming back to the class, we are doing lesson number 2, Little Birdie. We are doing lesson 2, Little Birdie. Okay? I'm sure you all remember the story. The story was of a little bird. Jaya was a little girl who was playing in the garden. There she found a little bird lying on the ground. Her wing was injured. Jaya picked it up gently, took it to her mother. Her mother cleaned the wound and bandaged the injured wing. She then put some cotton into a basket and made a soft bed for the birdie. Jaya and her mother, they were taking good care of the bird. They fed her crumbs of food and as a result, the bird became strong again. Her wings also healed and one fine day she flew away. वो उड़ गई. Jaya was very upset. She missed her little friend very much. Till the time she was with Jaya, जब तक Jaya के पास थी वो birdie, Jaya की उसके साथ बहुत फ्रेंडशिप हो गई थी. When we also keep a pet at home, जब हम अगर पेट रखते हैं घर पे, तो हमें भी उससे बहुत अटैचमेंट हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है. तो Jaya को भी इस बर्ड से बहुत अटैचमेंट हो गया था. When the bird flew away, Jaya was very upset. But suddenly, one day, she saw that the bird was back. वो bird वापस आ गई थी and she was sitting at the window and singing. वो window पे बैठ करके she was singing. Now, do you think the birds can sing? Birds ऐसे तो sing नहीं कर सकती. But her voice was so sweet. जया को बर्ड जब वापस आ गई तो जया वॉज सो हैप्पी दैट जो उसकी बर्ड की जो चर्पिंग साउंड होती है, चहचहाने की जो आवाज होती है, दैट वॉज लाइक अ सॉन्ग फॉर जया. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड वेन शी लुक्ड आउटसाइड, शी वेंट आउटसाइड, शी सॉ दैट द बर्ड हैड मेड अ नेस्ट इन अ ट्री इन जया's garden and there were 4 tiny eggs in the nest. Jaya was very happy. Then she was just wondering when the eggs would hatch. She was just waiting for the eggs to hatch. उसको लग रहा था कि कब जल्दी से ये eggs जो है hatch हो, मतलब टूटे और उनमें से little birdie, छोटे छोटे little birds बाहर आए. Okay? So we have done the spell well words. We have done the question answers. We have done word meanings. We have done the comprehension part. Today
we will start the grammar part. Okay? G we will start the grammar part today. Okay? Now first is sentence. SENTENCE. सेंटेंस. सेंटेंस जिसको हिंदी में हम वाक्य कहते हैं. ओके? सेंटेंस मतलब एक वाक्य. ओके? नाउ सी इन योर बुक, रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. मतलब ये जो वर्ड्स का ग्रुप है, यू हैव टू रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स. व्हाट आर द वर्ड्स? The words are love, parents, my, me, much, and very. Now read these group of words: love, parents, my, me, much, very. कैसे आप इसको रीड करोगे? जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं वैसे ही तो हम रीड करेंगे ना. सो हाउ डू वी रीड देम? लव, पेरेंट्स, माई, मी, मच, वेरी. यू हैव टू रीड. इफ यू रीड दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यू विल रीड दीज वर्ड्स एज लव, पेरेंट्स, माई, मी, मच, वेरी. ठीक है? डू दीज वर्ड्स मेक एनी सेंस? इस वर्ड्स को जब आप रीड कर रहे हो तो आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में आ रहा है कि ये वर्ड से क्या सेंटेंस बन रहा है, ये वर्ड्स हमें क्या कन्वे करना चाहते हैं? ओके? दे डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग. ये जो वर्ड से जो सेंटेंस बनता है इसका कोई मीनिंग नहीं है. दे डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग. ठीक है? दीज आर जस्ट वर्ड्स. Love, parents, my, me, much, very. These are just 6 different words. And if you put these words together, अगर हम इन words को एक साथ रख करके एक sentence की तरह read करें तो they do not convey any meaning. इनकी कोई भी meaning नहीं निकलती है. Okay? Now read this. My parents love me very much. Now you read the words. My parents love me very much. इसका क्या मतलब हुआ? It means कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं. ओके? माय पेरेंट्स लव मी वेरी मच. ओके? इसका मतलब हुआ मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं. ओके? नाउ दिस सेंटेंस इट कन्वेज अ मीनिंग. इस सेंटेंस से हमें एक मीनिंग मिल रही है. व्हाट इज द मीनिंग? कि मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं. ठीक है ना? वी गेट दिस मीनिंग. सो व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिससे कि हमें पूरी एक मीनिंग मिलती है. ओके? द वर्ड्स शुड बी अरेंज्ड इन प्रॉपर ऑर्डर. देखो यहां पे भी अगेन अरेंजमेंट आया वर्ड्स का. जैसे मैथ्स में हमने किया अरेंजिंग द नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंजिंग द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. ऐसे नंबर्स लिखे हुए हैं बट इफ यू हैव टू अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, उनको हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा. इफ यू हैव टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो हमें एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना होगा. तो सिमिलरली फॉर मेकिंग अ सेंटेंस,
for writing a sentence, we have to arrange the words in a proper order. ऐसे ही हम अगर वर्ड्स लिख देंगे तो, और इफ दे डू नॉट कन्वे एनी मीनिंग, अगर उन वर्ड्स से हमें कोई मीनिंग नहीं मिलता, दैट मीन्स दे आर नॉट अ सेंटेंस. वो कोई सेंटेंस नहीं है. ठीक है, अगर उन वर्ड्स से हमें कोई मीनिंग नहीं मिलता है, देन दे आर नॉट अ सेंटेंस. ओके, सो सेंटेंस is a group of words that convey a sense, जिससे हमें एक मीनिंग, सेंस का मतलब है मीनिंग. तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, जिनसे हमको पूरी मीनिंग मिलती है. ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स इस सेंटेंस में आते हैं. यू कैन सी ऑल दीज वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, बट These words are just words. ये जो है ये सारे सिर्फ वर्ड्स हैं, ऐसे लिख दिया है, इनसे हमें कोई मीनिंग नहीं मिल रही है. जब हमने इन वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज किया तो हमें एक सेंटेंस मिला. माई पेरेंट्स लव मी वेरी मच. मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं. सो दिस इज अ सेंटेंस. ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंटेंस. क्लियर? Now we will do few more examples. Am I girl a? ठीक है, Am I girl a? इससे कोई आपको मीनिंग मिल रहा है? आर यू गेटिंग एनी मीनिंग? नो, वी आर नॉट गेटिंग एनी मीनिंग. हमें कोई भी मीनिंग नहीं मिल रहा है इससे. ओके, दीज आर जस्ट 4 वर्ड्स. एम आई गर्ल अ. These are just 4 words. Okay, when I arrange these words in a proper manner, जब हम इन वर्ड्स को एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करेंगे, I am a girl. I am a girl. Now it makes complete sense. अभी ये क्या है? ये एक प्रॉपर सेंटेंस है. Okay, I am a girl. Let us do few more examples. Is tree this a? Okay, this is a sentence. Can you call this a sentence? आप इसको कह सकते हो कि एक सेंटेंस है. Is tree this a? इसका कोई मीनिंग बन रहा है? कोई मीनिंग नहीं बन रहा है. इसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है ना. When we arrange, if I arrange the words in proper order, this is a tree. Now it is a proper sentence. This is a tree. ठीक है, ये अभी एक proper sentence है. So this is how we make a sentence. तो sentence का मतलब होता है group of words which are arranged in such a manner that they convey a complete sense. They make a complete sense. मतलब वर्ड्स का ग्रुप है, लेकिन वो इस ऑर्डर में लिखा है कि उससे एक प्रॉपर मीनिंग हमको मिलता है. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. अभी समझ में आ गया कि सेंटेंस हम किसे कहते हैं. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. ओके, द एक्सरसाइजेस. फर्स्ट इज take the group of words that are sentences. First is
The group of words that are sentences. Okay, take the group of words that are sentences. First is in air the birds fly. Can you call this a sentence? In air the birds fly. क्या इससे आपको कोई मीनिंग मिल रहा है? No, we are not getting any meaning. In air the birds fly. It does not make any sense. इसका कोई मीनिंग नहीं है. So this is not a sentence. So we will put a cross. This is not a sentence. Correct sentence इससे क्या होगा? The birds fly in air. In air the birds fly is not a sentence. Okay. Second is I love my country. ठीक है, I love my country. This is a proper sentence. मैं अपनी country से प्यार करता हूँ. So this is a proper sentence. We will put a tick mark here. ठीक है, I love my country. Then third sentence is Riya is. Is this a sentence? Riya is. ये तो कोई sentence नहीं हुआ. Riya is what? Riya क्या है? Riya is a girl. Riya is a tall girl. Riya is beautiful. क्या है? कुछ हमें नहीं पता चल रहा है. So this is not a sentence. So we will put a cross. Then fourth is Riya is a tall girl. Okay? अभी ये बता, ये सेंटेंस है. रिया इज अ टॉल गर्ल. रिया एक टॉल गर्ल है. दिस सेंटेंस कन्वेज अ मीनिंग. इससे हमें एक मीनिंग मिल रहा है. सो दिस इज अ सेंटेंस. वी विल पुट अ टिक हियर. ओके. देन दिस इज अ लवली जैकेट. लवली मतलब बहुत अच्छी. दिस इज अ लवली जैकेट. दिस इज अ लवली जैकेट मतलब ये बहुत सुंदर जैकेट है. सो दिस कन्वेज अ मीनिंग. इससे हमें एक मीनिंग मिल रही है. सो दिस इज अ प्रॉपर सेंटेंस. सो वी विल पुट अ टिक हियर. ओके. सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कन्वे अ प्रॉपर मीनिंग. जिनसे एक प्रॉपर मीनिंग मिलता है उसे हम सेंटेंस कहते हैं. नाउ next is punctuation. I hope children sentence is clear to you all. Sentence सबको समझ में आ गया. Now next is punctuation. Punctuation का मतलब होता है कहाँ पे हमें रुकना होता है. When we read a sentence हम continuously नहीं पढ़ते जाते हैं. We have to stop somewhere. तो punctuation का मतलब होता है जो फुल स्टॉप जो हम लगाते हैं दैट इज पंक्चुएशन. फुल स्टॉप का मतलब होता है कि आपका यो सेंटेंस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है. सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाता है. सेंटेंस मतलब वाक्य. तो पंक्चुएशन जैसे यहाँ पे जो आपने फुल स्टॉप लगाया दैट मीन्स योर सेंटेंस एंड्स हियर. यहाँ पे मतलब आपका सेंटेंस जो है वो खत्म हो गया. ठीक है ना. इसके बाद न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा. So full stop is a punctuation mark. So each sentence starts with a capital letter and ends with a full stop. Whenever we write a sentence, जब भी हम sentence लिखते हैं, we always start it with a capital letter. Now you will see that in this sentence, this is a group of words and first alphabet is capital. It's not a capital letter. It is a small letter. So this cannot be a sentence. Second sentence, this is correct. So when we write a sentence, each sentence starts with a capital letter and ends with a full stop.
मतलब हर एक सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और सेंटेंस के एंड में क्या आता है, फुल स्टॉप. इफ यू डू नॉट पुट अ फुल स्टॉप मतलब आपका सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है, सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर दिया. एंड अगर आपने सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद इफ यू डू नॉट पुट अ फुल स्टॉप दैट मीन्स योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. या आपका सेंटेंस फिर वो प्रॉपर सेंटेंस नहीं होगा. आप सोचोगे क्या है, दिस इज जस्ट अ डॉट. फुल स्टॉप इज जस्ट अ डॉट. ओके, बट इफ यू डू नॉट पुट दिस डॉट एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट. अगर आप सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद ये फुल स्टॉप नहीं लगाओगे तो आपका सेंटेंस क्या होगा, इनकरेक्ट होगा. ओके, सो ईच सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर and ends with a full stop, and the word I is always written in capital. There are two things. What are those two things? First is कि हर एक सेंटेंस कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा और सेंटेंस खत्म होने पर लास्ट में क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप. एंड द वर्ड I is always written in capital only, whether it is in the beginning of a sentence or in the middle of a sentence. जो वर्ड I है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो चाहे सेंटेंस के बीच में हो, वो हमेशा कैपिटल होगा. ठीक है, वर्ड I. So I hope this much is clear. Now let us do second exercise. Now second is use the capital letter and full stop wherever necessary. Use the capital letter and full stop where नेसेसरी. ठीक है, मतलब जहां भी कैपिटल लेटर यूज करना है या जहां भी आपको फुल स्टॉप लगाना है. सेंटेंस इज गिवन बट इट इज नॉट रिटन करेक्टली. जो सेंटेंस है वो आपका करेक्ट नहीं है. सो यू हैव टू राइट द सेंटेंस इन अ प्रॉपर मैनर. उसको करेक्ट करके हमें लिखना है. सो फर्स्ट इज सी, नेहा is a pretty girl. नेहा is a pretty girl. मतलब नेहा एक pretty लड़की है. But this is not correct because first alphabet is small and there is no full stop. So how do we write it? इसको हम कैसे करेक्ट करके लिखेंगे? We will write it as नेहा is a pretty girl and then full stop. Okay, this is a proper sentence now. Okay, now second is I like to eat ice cream. I like to eat ice cream. Now again, this is not a correct sentence because I is small and there is no full stop. So how do we correct it? इसको हम correct कैसे लिखेंगे? I like to eat ice cream. Okay, this is correct sentence now. I like to eat ice cream. First, I is capital and then a full stop. Okay? Now, third one is Nitin goes to the market. Third is Nitin. Nitin goes to the
market. Now this is again not a correct sentence because the first alphabet is small and there is no full stop at the end of the sentence. So how do we write it? First alphabet is capital, that means capital N. Nitin goes to the market and then full stop at the end. So this is correct sentence now. Okay. Fourth is Mona likes to play in the park. Now this is this correct? ये correct sentence है. First alphabet is small. There is no full stop. That means this sentence is not correct. So how do we write it in proper manner? First alphabet is capital. That means M would be capital. M capital होगा. Mona likes to play in the park and then full stop. So this is the correct sentence. Mona, first alphabet is capital and then full stop at the end of the sentence. So Mona likes to play in the park. This is the correct sentence. Okay. So today in grammar, what all have we done? आज हमने क्या क्या किया? We have done sentence and punctuation. It is very important to write sentence in proper manner. अगर आप sentence को proper तरीके से नहीं लिखोगे, if you do not write the first letter of the sentence in capital or if you do not put the full stop at the end of the sentence, तो क्या होगा? आपका sentence wrong हो जाएगा. ठीक है ना? In English आपको लगेगा अरे ये तो बहुत छोटी सी मिस्टेक है, क्या हो गया अगर मैंने कैपिटल नहीं लिखा, क्या हो गया अगर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया. बट दिस इज प्रॉपर वे, दिस इज ग्रामर. लैंग्वेज में ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब हाउ डू यू राइट अ पर्टिकुलर सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप उस सेंटेंस को अगर गलत तरीके से लिखोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा. ठीक है. साइंस में या मैथ्स में कोई बात नहीं, बट इंग्लिश में अगर फर्स्ट अल्फाबेट आप कैपिटल नहीं लिखोगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया लास्ट में तो भी सेंटेंस गलत हो जाएगा. फुल स्टॉप नहीं लगाने का मतलब है कि योर सेंटेंस हैज नॉट स्टॉप, मतलब फुल स्टॉप. फुल स्टॉप का मतलब क्या हुआ? स्टॉप मीन्स रुकना. जैसे ट्रैफिक लाइट में देयर आर 3 लाइट्स, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट. सो व्हाट डज द रेड लाइट सेज? रेड लाइट सेज स्टॉप. सबने प्री प्राइमरी में राइम सीखी है ना, रेड लाइट व्हाट डू यू से? आई से स्टॉप. सो स्टॉप मीन्स रुकना. तो सिमिलरली फुल स्टॉप, फुल स्टॉप मीन्स आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया. ओके. And after this, when you start a new sentence, you again start it with a capital letter. Okay? Sentence यहाँ पे complete हो गया. इसके बाद अगर आप दूसरा sentence लिखते हो तो वो sentence फिर से कैसे start होगा? Capital letter से होगा start. ठीक है? So in English, punctuation mark is very important. ठीक है? Punctuation में आप सोचोगे full stop तो एक dot है, बट दैट फुल स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज हमने क्या पढ़ा? सेंटेंस. व्हाट इज अ सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. मतलब सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि कंप्लीट सेंस, मतलब उससे एक कंप्लीट हमको मीनिंग मिलती है. ओके चिल्ड्रन, सो टुडे आई विल नॉट प्रोसीड सेंटेंस एंड पंक्चुएशन. जो मैंने 2 चीजें बताई है
I hope this is clear to you. You will go through in your book and please go through the video. आप वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीज बहुत क्लियर होगी. So today I will stop here, children. Thank you so much. Thank you for joining me. Stay happy, stay safe. Thank you, children.